So we are going to learn today website making, website development at content management system, content management software that is called WordPress. Before this, we learned website making at Wix. Wix was ready-made builder, but now nothing is in the form of builder. We have to arrange the bricks, we have to arrange cement, we have to arrange mortar, we have to arrange everything to build one website for our ऑनलाइन प्रेजेंस। और इस वाले ऑप्शन में, इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, we can design any kind of website and any kind of customization। दुनिया में जो कुछ आप सोच सकते हो, whatever you can think to create for you, that is possible with this option। there is no limitation at all, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन सीखने के लिए आज मैं आपको लेके चलता हूं। तो जस्ट ए मिनट, 10 मिनट पहले, दिस इज 1905 and up to 1915 I'll discuss a little bit theory part of this and then we'll go straight to the practical demonstration. Please be ready and please keep a pen and copy with you so that you can note down the key points, key takeaways here, because this lesson is going to be little technical। तो जहां आपको लगे कि you are not able to digest something, so you please stop us so that you can make it perfect for you। आप जब तक नहीं सीख जाते, please do not allow us to go ahead, then only you would be able to learn this skill। And this can become so easy in case you learn it systematically। So come with me, let's move ahead। WordPress is what? WordPress is a, बेटे एक मिनट कॉल है दीक्षा। So we are going to learn WordPress, and WordPress is an open source. What is this? Actually, WordPress. So WordPress is an open source and free web publishing application that is called content management system. And it is nothing. It is one program, one software, one system which is available for free of cost for everyone। Means everyone can create a website without paying a single penny through this WordPress। So WordPress facilitates website making to the people। What actually this is? So this is a software, you can say it's a language, you can say it's a program by which you can, or with the help of that you can create a website। तो अब इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। What does it mean? You have to pay money for hosting, means rent for a space you have taken on a particular computer server, that's a different thing। Domain name, that's your name, you have to buy it। But actually to create your website on your this hosting space, the environmental creating software is available online free of cost, and that environmental and structure making software, that coding, that set of coding is called WordPress, और वो फ्री में अवेलेबल है। तो अब आज हम उसको फ्री वाले एप्लीकेशन से कैसे वेबसाइट बनती है वो आज हम बनाने वाले हैं। A CMS provides the following web page editing capabilities। What it exactly gives to us? It gives us capabilities and technical coding to create, edit, publish website। ये सब हमें वो देने वाला है। और इसमें पूरी दुनिया में there are 3-4 kind of CMS जिसको आप कह सकते हो।
एक हमने बिग सीखा था, दैट वाज नॉट CMS बट इट वाज अ बिल्डर. And the second is Joomla, third is Drupal, and fourth is WordPress. Joomla is again a website building software. So that released in 2005, and it is little typical kind of application which generally cannot be learned by uh, layman people. Drupal is more complicated and structured program, wherein WordPress is structured but not complicated. It can be learned easily. तो ये तीन हैं दुनिया में जो ज्यादातर चलते हैं. And the beauty of CMS is that you need not to learn a lot of coding. आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है. It facilitates you like Wix. Not exactly like Wix, but little lesser than Wix. So it gives you some ready-made parts and some you have to do, but not coding at all. In case you don't want to do coding, in case you do not know coding, then also you can create good website with WordPress. आज हम वही सीख रहे हैं. अब WordPress का मार्केट शेयर कितना है, you'll see पूरी दुनिया में 69 to 70% websites are being created on WordPress alone, and Joomla takes 10% of the stack, and others take very fractional stack of it. तो आप समझ सकते हो कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट दुनिया में लोग ज्यादा बनाते हैं, इसका मतलब ये सबसे अच्छा चलता है. It's a best choice for beginners because it's easy to use. It works especially well for small to medium sized websites, blogs, and smaller e-commerce stores. Joomla is good for e-commerce, social networking website, but require a basic understanding of technical skills, which generally every entrepreneur doesn't have. Drupal, the most difficult but also the most powerful, it requires a familiar understanding of HTML, CSS, and PHP, which we do not know. So we are scrapping Joomla and Drupal here because the majority of people create their website on WordPress. That's why we are going with that application only. And because 70% people trust in WordPress, that's why we are going with the 70% people. तो वर्डप्रेस का अब आपको और मुझे जरूरत है कि इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे चले. In case you could learn the step by step configuration, then it is easy to you. The basic thing is the step by step configuration and what are its tools. घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, इसका भी एक रेसिपी है, और रेसिपी अगर हमें समझ में आ गया तो हम वर्डप्रेस आराम से समझ जाएंगे. तो आज मेरे साथ सब चलेंगे वर्डप्रेस समझने के. कितने लोगों के पास यहाँ होस्टिंग अवेलेबल है? Those who have hosting and domain with them. शेखर जी ने कहा मैं मुझे खरीदना है. ग्रेट, चलिए बस ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, आप ले लेना. आज हम डिस्कस करते हैं इसको. तो वर्डप्रेस के फीचर्स हमने देखे थे. ये फ्री है, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू कस्टमाइज है, लॉट्स ऑफ फ्री थीम्स, लॉट्स ऑफ फ्री प्लगइन्स, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, हाई सिक्योरिटी, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके. एंड इसके सेगमेंट्स आगे चलते हैं हम. क्या करना पड़ेगा हमें? यस, अब ये जो स्टेप्स है जो मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर पेपर. अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, देन it will become easy to you to create a website. What you have to do? The first step is purchase a hosting. Hosting means a space wherein you will put your data, you will put your pages, you'll put your website stored somewhere online so that others can fetch the copy of it, others can access it. जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करे ऑनलाइन और आपकी वेबसाइट सामने आ जाए, वो कहां से आएगी? आपका जो कंप्यूटर होगा एक, जहां पर आपने रेंट पर लिया है स्पेस, वहां आपने अपनी वेबसाइट को रख दिया, तो आपको वो स्पेस चाहिए होगा. कैसे चाहिए होगा मैं बताने वाला हूं अभी आपको. Second domain, the name, why which people will locate it, why which people will navigate it to your website, why which you would be known, why which your business will be known in the online world. So that one name, that again is required to take on rent.
you have to take it on rent. एनुअल रेंट पर ये मिलता है, रादर ये यूनिक होगा आपके लिए, बट इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी. यू हैव टू पे रेंट फॉर इट, एनुअल रेंट. आपको हर साल उसका पैसा देना पड़ेगा. तो परचेज होस्टिंग, परचेज डोमेन, दोनों चीजें जब आपको मिल गई, देन यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज टुगेदर, बिकॉज there are two chances. You might have purchased your domains from somewhere else, and you might have purchased your space at somewhere else. Then you have to connect both of them so that the space and this domain should interact together. दोनों को unite करना है. बस उसको unite करने के बाद then आपको क्या करना है, फिर आप अपने स्पेस पर जाएंगे जहां आपका कंप्यूटर हायर किया हुआ है. उसमें आपको एक कंट्रोल पैनल मिलेगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सको, उस स्पेस को. उस कंट्रोल पैनल में जाने के बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, you have to install the WordPress basic software. WordPress open software that is provided free of cost, that is available online. You have to download it, you have to copy it over there, and this is required to install. Now your space, so far no website is there, but the website making program, which is WordPress, that you have installed over there. So your foundation is ready. Now what you have to do, अभी आपने वो create कर दिया, then you would require some design, because you have content in your mind, but you would require a theme of design. Theme of design is like educational website, tour and tourism website, e-commerce website, portfolio website. There are a lot of kind of websites. So you have to choose which kind of structure I would take it. So already there are a lot of templates available online, free of cost and on paid basis. So you have to choose one. Just put one basic theme there, like you took a design to develop your office, to design to construct your office. That the same way you took a design and just put in your WordPress environment. I think it's clear so far. यहाँ तक clear है? यहाँ तक complicated तो नहीं है? Please, if yes, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो please मुझे yes लिख के बताएं. Rather, I repeat it 3 times today. शेखर जी ने कहा yes, सोनाली जी ने कहा yes, लक्ष्मी जी ने कहा yes, कुलदीप जी ने कहा yes. Wonderful. तो अभी हमने इंस्टॉल किया. So I'll ask these questions to you. Theme, and after theme, we would require to install template. We would require to install template. जो मैंने यहाँ नहीं लिखा. There is a 6A point. You can note it down. 6A point template. So what is template? Theme आपने डिजाइन कर लिया, outer theme. Theme is just for to like exteriors डिजाइन कर लिया आपने, that is theme. But interiors का डिजाइन जो है, डमी कंटेंट वहां लगा होगा, वो आपका किससे आएगा? टेम्पलेट से. तो आफ्टर पॉइंट 6, आफ्टर स्टेप 6, you have to take step 6A, that is install template, pre-designed template. And on the 7th step, you have to put some plugins. What are these plugins? Plugins are like you in your office or in your home, after creating your structure, then what you do, you put some electrical installations, sanitary installations, telephonic installations, furniture installations. So such kind of things you can say at the time of website creation, you would require some fillers like this. And these filling facilities are called here plugins. So then we have to put some plugins. And now that everything is ready, we have to put our content over there. We have to put our content over there, and the content can be put over there with the help of one ready-made builder. Means there is one assistant in WordPress. It can assist us in a very sophisticated way, and that is called Elementor. We have to install it over there. Elementor को install करना है so that it can help us to create the pages over there, to put our content over there. And then we have to customize the pages, what pages we have to put over there. Then we will pour on our content,
and now the pages are ready and our website is ready to use. So these are 10 steps. I'm going to ask you, so who is going to tell me what are 10 steps? पहला स्टेप क्या था? यस प्लीज आप माइक ओपन करके बता सकते हैं। और पहला स्टेप क्या था या आप मुझे परचेज होस्टिंग था। हाँ, किसने बोला? वेरी गुड, परचेज होस्टिंग। सो आई एम राइटिंग हियर परचेज होस्टिंग। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या था? परचेज डोमेन। अच्छा, एक जिसने एक आंसर दिया वो प्लीज रिपीट ना करें, फिर दूसरे बोले। 10 लोग हैं, 10 पॉइंट है। परचेज डोमेन, वंडरफुल, ग्रेट। प्लीज एक बार वेरीफाई कर लो। देन द थर्ड स्टेप इज connect hosting and domain with server. वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बढ़िया, गुड, नाइस। एंड द फोर्थ वन इज पेपर लीक हो गया। ये कनेक्ट कैसे करते हैं नेम सर्वर से? मतलब यस, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं, बिल्कुल डेमो करके दिखाने वाला हूं मैं आपको। कंट्रोल पैनल और डैशबोर्ड को ओपन करो। कंट्रोल पैनल और डैशबोर्ड को ओपन किया। यस, ग्रेट। एंड द नेक्स्ट वन किया वर्डप्रेस पैकेज। बहुत बढ़िया, वर्डप्रेस पैकेज को इंस्टॉल किया। द नेक्स्ट वन इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन। इंस्टॉल थीम, नेक्स्ट, ग्रेट। प्लगइन। यस, यहाँ गड़बड़ हुई। बताइए अगला स्टेप क्या हो सकता है? इंस्टॉल टेम्पलेट, प्लगइन एंड लाइट। वंडरफुल, ग्रेट। जिन्होंने भी टेम्पलेट बोला, सो क्लैपिंग फॉर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वो मिसिंग था यहाँ। तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद? टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, वो मैंने यहाँ मिसिंग था लिखने में। एंड द नेक्स्ट वन प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल किया। द नेक्स्ट वन एलिमेंटर काम करेगा सर। वेरी गुड, नेक्स्ट। फिर अपना काम स्वयं करे, एडिट करे पेजेस को। फिर अपना काम खुद करेंगे। एंड देन आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। मैं आप सबके लिए क्लैप करता हूँ कि आपने इतने स्टेप्स को यहाँ इतनी आसानी से बताया। अब चलते इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे सो दैट आप इसे आसानी से समझ सके। पहला स्टेप था डोमेन नेम, नेम ऑफ वेबसाइट। वॉइस क्रैक हो रही। मैंने अपना स्पीकर बंद कर दिया, एक मिनट। यस, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर साउंड। यस, डोमेन नेम लिया। देन सेकंड स्टेप होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब स्पेस लिया। जब हम होस्टिंग खरीदेंगे तो वहां स्पेस लेंगे और रैम की बैंडविड्थ लेंगे, कंट्रोल पैनल, ये तीन चीजें मिलेंगी उसके साथ। डोमेन लेंगे तो डोमेन के साथ हमें नेम सर्वर्स मिलते हैं, यानी उसकी आइडेंटिटी मिलती है डोमेन की। और होस्टिंग लेते हैं तो हमें स्पेस मिलता है, यानी कितनी जगह हमने वहां रेंट पे ली है। और एक एक्सेस बैंडविड्थ मिलता है, एक हाईवे मिलता है कि कितने लोग एक साथ उस वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर हमने एक छोटा हाईवे ले लिया, बैंडविड्थ छोटी ली है, तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे हमने सुना होगा सर्वर बैठ गया, सर्वर ठप हो गया। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जिस सर्वर पर वो वेबसाइट होती है रिजल्ट वाली, वो ठप हो जाता है और हमारे कंप्यूटर्स, मोबाइल घूमते रह जाते हैं, ऐसे घूमता रहता है। इसका मतलब है कि वहां इतने लोग एक्सेस कर रहे हैं उस वेबसाइट को कि उस सर्वर की कैपेसिटी नहीं है रैम की एक साथ इतने डेटा को एक साथ वो ट्रांजैक्शन कर सके। तो फिर लोग क्यू में चले जाते हैं, पहले वाले हटते हैं तो दूसरे वालों का नंबर आता है, अदरवाइज आता ही नहीं। तो हमारी वेबसाइट में कितने लोग आएंगे उतना बैंडविड्थ हमें लेना चाहिए ताकि एक साथ लोगों को वेबसाइट खुलने को मिले। तो वहां कंट्रोल पैनल मिलता है, क्योंकि जब भी आप कोई कंप्यूटर पे स्पेस लेंगे, कोई सॉफ्टवेयर लेंगे, कोई फीचर लेंगे, तो वहां कंट्रोल करने के लिए आपके पास जब तक टूल्स नहीं होंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वहां कंट्रोल पैनल मिलेगा। दो चीजें जब हमें मिल जाएंगी, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब हमारा नेम और स्पेस, यानी हमने एक खाली प्लॉट लिया और प्लॉट पे हमने अपना साइन बोर्ड लगा दिया। अब हमारी ऑफिस का प्लॉट बन गया। अब यहाँ हमें अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना है। ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम फाउंडेशन डालेंगे। फाउंडेशन डाला वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का फाउंडेशन है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, फाउंडेशन हो गई। उसके बाद हमने थीम ले ली और थीम के बाद हमने टेम्पलेट लिया और टेम्पलेट के बाद प्लगइन और प्लगइन के बाद फिर हमने अपना
काम शुरू किया, पेजेस तैयार किए, पेज तैयार किए, हमें लगा ठीक है तो अपना वेबसाइट रेडी है। बस इतना सा काम है। अब यही सारे काम मैं आपको प्रैक्टिकल करके डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला हूं, तो मेरे साथ चलिए। आप कहां से खरीद सकते हैं डोमेन और होस्टिंग? लाइक ये GoDaddy है। GoDaddy एक एप्लीकेशन, GoDaddy एक पोर्टल है ऑनलाइन, इंडियन पोर्टल है। यहां से आप डोमेन खरीद सकते हैं, होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप, एक डोमेन हमारा यहां है, जब भी आप जाओगे, अगर आपने कोई डोमेन वहां से परचेज किया है, तो ये हमारा एक डोमेन है यहाँ। ये डोमेन हमने यहाँ से लिया हुआ था, ये एक्सपायर हो रहा है 26/11/2021 को, ठीक है। और इस डोमेन के, अब मुझे डोमेन तो पता चल गया, पर इसको कनेक्ट कैसे करूंगा? तो मुझे इस डोमेन से रिलेटेड इसके DNS चाहिए, यानी इसकी आइडेंटिटी चाहिए। तो यहाँ से मुझे ये आइडेंटिटी मिलती है, ये DNS पे क्लिक किया तो यहाँ से मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। सर क्या हम लाइव बाय करके एक बार इंटीग्रेशन नहीं देख सकते? हाँ हाँ, कर सकते हैं। आप में से जब भी जिसको बाय करना हो तो वो मुझे बता दो। अगर अभी आप लाइव किसी को बाय करना हो, मेरे पास ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, तो सर मैं अपना ही अभी बाय करता हूँ, साथ के साथ आप बताइए कैसे कैसे करना है। हाँ, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सर। 1 मिनट में आपको बस एक डेमो दे दूं, DNS टेम्पलेट। जिनको भी बाय करना है, मैं एक बार, आप अपना GoDaddy या होस्टिंगर देख लो एक बार, और फिर चलते हैं। GoDaddy का जो होस्टिंग है क्या वो ठीक है आपके हिसाब से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए? मैं फिर आपको अभी मैं सारी बातें बता देता हूँ, फिर आप चलना आगे। ये GoDaddy हुआ। What is the full form of a DNS? DNS का फुल फॉर्म नेटवर्क सर्वर होता है सर। D से क्या होता है, 1 मिनट में यही। DNS stands for डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम है, तो हर जब भी कोई डोमेन नेम लोगे तो आप उसके साथ में एक थ्रेड देता है उसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ ये है मेरे पास, ये मैं होस्टिंगर में खड़ा हूँ, और होस्टिंगर में ये मुझे DNS मिले हैं उसके साथ, DNS1.reseller name server.in, DNS2 reseller name server.in। ये थ्रेड है जो आप किसी भी होस्टिंग, जहां भी आपने स्पेस लिया उसके साथ इसे कनेक्ट करने का। तो जहां आपने होस्टिंग ली, वहां जो वेब पेजेस आपने क्रिएट किए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए टेक्निकली इनको कनेक्ट करना पड़ता है बस। तो यहां से हमने डोमेन परचेज किया, और डोमेन परचेज करने के बाद फिर हम होस्टिंग पे जाके इन DNS को वहां लगा देते हैं। तो होस्टिंग कहीं से परचेज, जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूं, मेरे पास यहां भी मैंने लगाया हुआ है, और जैसे यहां लॉग आउट किया मैंने और फिर लॉग इन करूंगा। मैंने यहां से एक होस्टिंग खरीदी हुई है,
ओनो होस्टिंग से। ओनो होस्टिंग सबसे सस्ती होस्टिंग है अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको करनी है तो। ₹400-500 में 1 साल की होस्टिंग आ जाती है आपके पास। अच्छा। हाँ, तो जब वेबसाइट बनाने में भी आपको टाइम लगता है, जब वेबसाइट बनाने में आपको टाइम लगेगा तो इतने टाइम आप यहाँ से वेबसाइट बन जाती है, ₹400-500 में तैयार हो जाती है, फिर आप उसे चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लॉगिन किया तो मैंने यहाँ से होस्टिंग ली हुई है, डोमेन लिया था हमने होस्टिंगर से। होस्टिंगर से डोमेन लेने के बाद यहाँ से सिर्फ एक ही सर्विस ली हुई है, होस्टिंग, और ये सर्विस है 1, 0 डोमेन है। यहाँ से डोमेन नहीं खरीदा हमने, सिर्फ यहाँ से लेके और उसे यहाँ कनेक्ट कर दिया होस्टिंग के साथ। वहां से लाके नेम सर्वर्स यहाँ लिख दिए जाते हैं एक साथ और बस ये कनेक्ट हो जाता है। अब किसी को ये जो 3 स्टेप हैं मैंने आपको अभी दिखाए थे, ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ऊपर वाले, अगर आपने डोमेन पहले से लिया हुआ है तो होस्टिंग खरीदनी है, और अगर दोनों आपने लिए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, दोनों एक ही जगह से ले लो। तो फिर ये तीसरा वाला स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक ही होस्टिंग प्रोवाइडर से लिए तो वो ऑलरेडी आपस में कनेक्ट करके देता है, तो आपको उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी इसका थ्रेड उठा के इसमें रखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल एक स्टेप बच जाता है, और हमें 2 अकाउंट अलग अलग कहीं नहीं रखने पड़ते। अदरवाइज आप 2 लॉगिन रखोगे, एक जगह से थ्रेड उठा के यहाँ रखोगे और दोनों को अलग अलग डेट पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर डोमेन एक्सपायर हो रहा है तो आपको वो अकाउंट देखना पड़ेगा, और होस्टिंग एक्सपायर हो रही थी अकाउंट देखना पड़ेगा। तो रिकमेंड ये होता है एक अच्छे अकाउंट क्रिएशन के लिए कि दोनों चीजें एक जगह से ले लो, तो आपका एक तो स्टेप बच जाता है, और एक जो है आपको अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके लिए सीधे मैं लेके चलता हूं आपको डोमेन होस्टिंग पे, जैसे hostinger.in। यहाँ hostinger.in है, यहां से आप होस्टिंग पे जाओगे तो यहां आप देखेंगे कि आपके पास कई तरह की होस्टिंग है। समझना, एक है शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटरनेट की एक लाइन को 4 लोग यूज करते हैं, और वो कहता है ये कितना 100 MBPS की लाइन है, 100 MBPS की लाइन पर 4 लोग काम कर रहे हैं। अब वो इकट्ठे एक साथ काम नहीं करते, इकट्ठे एक साथ काम करेंगे तो उनको 25 MBPS मिलेगा, बट क्योंकि कंपनी उसका फायदा उठाती है, वो 100 MBPS करके बेच देती है आपको। उन्हें पता है कि चारों लोग इकट्ठे तो काम करेंगे नहीं, इसलिए स्पीड का इनको इशू आएगा नहीं। तो ये भी क्या करते हैं, शेयर्ड वेब होस्टिंग में क्या करेंगे, आपको स्पेस दे दिया, एक कंप्यूटर पे आपने स्पेस ले लिया 5 GB, आपके एक पड़ोसी ने 5 GB लिया, फिर तीसरे आदमी ने 5 GB लिया, चौथे आदमी ने 5 GB लिया। अब 5-5 GB स्पेस तो मिल गया। अब जो रैम ली आपने, रैम आपने मान लिया अनलिमिटेड ले ली, यानी 1 करोड़ लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो उनको वेबसाइट दिखाई दे, तो वो लोग कहेंगे आपको अनलिमिटेड आपकी वेब होस्टिंग है। जैसे मैं अभी जा रहा हूं नीचे, शेयर्ड वेब होस्टिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा के दिया है उसने, और यहाँ पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया 100 GB बैंडविड्थ। अब 100 GB बैंडविड्थ लिमिटेड है, यानी जितने लोग 100 GB स्पेस पर एक साथ आ सकेंगे, इतना डेटा जब तक उस पाथवे पे चलता जाएगा तब तक ये आपका सर्वर जो है ठप नहीं होगा। 100 GB से ज्यादा के लोग इकट्ठे एक साथ आ गए, यानी आपने वीडियो रख दिए और बहुत सारे लोग वीडियो इकट्ठा देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब के देखते हैं, तो ये सर्वर एक्सेस ही नहीं देगा, वो वेटिंग में चले जाएंगे लोग। तो अब इसने क्या किया, यहाँ अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे दिया। अभी भी यहाँ बड़ा लोचा है,
Unlimited bandwidth means unlimited people can access your website at any time, but it doesn't happen actually because it's a shared hosting. They know that a lot of people cannot come to a single website, and when the small scale and medium scale entrepreneurs and businesses are going to create their websites, so unlimited people access that website. इन्होंने लिख तो दिया unlimited, बट ये सबके लिए अनलिमिटेड है। एक साथ पता है बहुत सारे लोग नहीं आते, तो अनलिमिटेड दिखा के ये आपसे पैसे तो ले लेंगे, बट एक्चुअली इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट्स अ लिमिटेड। और उसका फायदा ये है कि शेयर्ड है, अनलिमिटेड इसलिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ को शेयर करा दिया उन्होंने। तो इसमें देखो ऊपर लिखा है 25,000 विजिट्स मंथली, इतने लोग विजिट कर सकते हैं एक महीने में, तो फिर ये अनलिमिटेड कैसे हो गया बैंडविड्थ? तो यहाँ दोनों कॉन्ट्रा है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम शुरुआत में पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट को लाइव होने में इट विल टेक टाइम, और हमारी वेबसाइट को नॉट लाइव पॉपुलराइज होने में इट विल टेक टाइम। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि हमने कल वेबसाइट पब्लिश किया और करोड़ों लोग हमारी वेबसाइट पे आने शुरू हो गए। नो, इट डजंट हैपन। You have to market your website, you have to make it popularized, you have to put keywords for it, you have to search engine optimization for it, you have to put backlinks for it, then only people will start coming to your website. और तब तक एक साल आराम से गुजर चुका होगा, तो पहले साल आप अपनी वेबसाइट पर बहुत हैवी होस्टिंग का पैसा खर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। पहले साल ये रिकमेंड होता है कि आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, आप पॉपुलराइज करना शुरू करोगे, तो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग में लो बैंडविड्थ के साथ या कम स्पेस के साथ भी काम चला सकते हो। 100 GB SSD स्टोरेज बहुत मोर देन इनफ है शुरुआती वेबसाइट के लिए। अगर आपके पास बहुत सारी मूवीज या बहुत सारी वीडियोस अपलोड नहीं करने वाले, तो 100 GB इज इनफ। नाउ यू सी so what is the storage size, what is the data size you have, like अभी किसका था, शेखर जी का था, बहुत सारी इमेजेस है उनके पास, 3000 इमेज है शेखर जी के पास। तो शेखर जी जिस फोल्डर में वो 3000 इमेज है, उस पर राइट क्लिक करके देखो आपके कितना डेटा उसका है, उससे डबल डेटा, उसको डबल डेटा चाहिए आपको वेबसाइट के लिए सर। तो यहाँ ये समझ में आ गया होस्टिंग के लिए। अब यहाँ कौन सी लेनी है, 119 रुपीज पर मंथ या 259 रुपीज पर मंथ या 59 रुपीज पर मंथ। मैं अभी एक ऑप्शन दिखाया, इसमें से किसी को भी बाय कर सकते हैं। बट ये जो 119 पर मंथ है, जब भी आप इसको परचेज करोगे तो दिस इज मिनिमम फॉर 4 इयर्स या 3 इयर्स। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, दिस इज नॉट फॉर 1 ईयर। ये एक बल्क में ऑफर है। और सर अगर हम पहले 59 वाली ली और बाद में 1 साल के बाद हमें ज्यादा वाली चाहिए, तो क्या अपग्रेड कर सकते हैं उसमें ऑफर में? Absolutely, you can do it. मतलब 4 साल के लिए ऑलरेडी पे किया है तो भी देते हैं कि अपग्रेड कर? 4 साल के लिए अगर आपने पे कर दिया है और फिर भी आप एडिशनल लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा पैसा देके एडिशनल आप ले सकते हो। देखो अभी इसने 119 में 4 इयर्स के लिए आपको 6740 लेने वाला है। अगर आप इसे 24 मंथ्स के लिए लोगे तो द सेम फैसिलिटी इज बीइंग लिटिल कॉस्टली। 24 मंथ्स में 169 रुपीज पर मंथ लिया इसने, तो ये यहाँ ऐसे करके चेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके फीचर्स देखने। इस 59 वाले प्लान में इस स्पेस पर वॉट एवर स्पेस यू आर गोइंग टू टेक फॉर होस्टिंग, यू कैन होस्ट ओनली 1 वेबसाइट, बट विद दिस प्लान यू कैन होस्ट अप टू 100 वेबसाइट्स। Means same space में you can put more than 1 websites over there. आप एक साथ एक से ज्यादा वेबसाइट्स वहां रख सकते हो। तो यहाँ इतने विजिट हो सकते हैं, प्लस 1 कमर्शियल ईमेल इज फ्री। 1 कमर्शियल ईमेल लाइक info@Danny Devecha, info@शेखर फर्नीचर, वो जो भी आप बनाना चाहते हो वो एक कमर्शियल वेबसाइट फ्री मिलेगा। SSL फ्री है, SSL सब में ऑलमोस्ट फ्री होता है। SSL means security certificate. So security system so that your website cannot be hacked. This security certificate saves your website from hacking. And in this plan, domain is free. 1 domain you can get of your choice, वो free मिलेगा। 59 वाले में domain you have to buy. इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ होगी, इसमें आपके 100 GB बैंडविड्थ होगी।
मैनेज वर्डप्रेस दोनों में ही है, वर्डप्रेस एक्सीलरेशन दोनों में ही है, मनी बैक गारंटी दोनों में ही है, अनलिमिटेड डेटाबेसेस इसमें है, इसमें 2 डेटाबेसेस हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें किस पे जाना है, एक तो ये हो गया। सर ये GIT एक्सेस क्या है? GIT एक्सेस तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी कभी यूज नहीं किया। SSH एक्सेस भी लिखा है, वो क्या? नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, दोनों के बारे में मैंने यहीं तक, हाँ कुछ होगा तो मैं सर आपको इसमें देख के 100 बताऊं। वेबसाइट आपने जी हेलो। प्लीज, जी प्लीज। तो शुरुआत में दिखा है 100 वेबसाइट, यानी जी। 100 पेजेस ऐड कर सकते हो कि अलग अलग वेबसाइट? नहीं, 100 डोमेन लेने के बाद ये आपका जो 100 GB स्पेस है, जनरली एक वेबसाइट आपकी अगर नॉर्मल सी वेबसाइट है तो उसमें 1 GB डेटा भी नहीं होता। अच्छा, वेबसाइट में अपने आप में बहुत कम डेटा होगा। तो ये स्टेलर होस्टिंग हो जाएगी। स्टेलर होस्टिंग इसको कहते हैं कि आपने अगर ये वाला प्लान ले लिया और आप चाहते हो कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब इसी होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकें, तो वो भी हो सकता है। अच्छा हो सकता है। यानी हम सब लोग, इस एक आदमी ने होस्टिंग खरीदी और उसमें से आपने मीटर कर दिया उसको कि स्पेस को बांट दिया, 100 GB को आपने 10 GB हम सबको दे दिया और 10 GB स्पेस पर कंट्रोल पैनल अलग बन जाएगा, अकाउंट अलग बन जाएगा, किसी को किसी का अकाउंट पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे अभी ये हमें जो होस्टिंगर अभी बांट के देने वाला है ना 100 GB, वैसे ही आप 10-10 GB आगे बांट सकते हो। ओके ओके। जैसे सर मेरा अभी प्रॉपर्टी का काम है, लेकिन मेरे समझो ना कि 3 अलग अलग कंपनी के नाम से मैं ऑपरेट करता हूँ। मैं आप एक ही होस्टिंग पर तीनों वेबसाइट बना सकते हो। तीनों वेबसाइट बना सकता हूँ। तीनों वेबसाइट्स के नाम अलग होंगे, होस्टिंग मतलब वो स्टोर्ड एक ही जगह रहेंगी, यानी आप एक ही बिल्डिंग में 3 ऑफिस चला रहे हो, तीनों के बोर्ड अलग अलग लगे हैं, बस सिंपल है। ओके 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 ओके। सर इसमें लिखा है 119 में कि 25,000 विजिट मंथली, तो मतलब जी। 25,000 से अगर ऊपर विजिटर आते हैं तो वेबसाइट नहीं खुलेगी, राइट? 25,000 से ऊपर विजिटर आते हैं, वेबसाइट खुलेगी, बहुत स्लो खुलेगी। तो उस समय पे आपको सिग्नल दे देंगे कि आप इसे अपग्रेड करो। और यही चीज अगर हम होस्टिंग राजा पे देखते हैं तो उसके अंदर 20,000 विजिटर पर डे का बता रखा है। मैं 1 मिनट, होस्टिंग राजा चल रहा हूँ सर। होस्टिंग राजा, होस्टिंग राजा होस्टिंग राजा पर गए तो यहाँ 161 रुपीज पर मंथ का एक पैकेज है, 120 GB वेब स्पेस है, उससे ज्यादा 100 GB बैंडविड्थ है, 200 ईमेल्स है, यानी वो जो ईमेल वहां 1 मिल रही थी या 200 है, और 5 सब डोमेन बना सकते हो। सब डोमेन की आपको इतनी जरूरत नहीं, 5 वेबसाइट बना सकते हो। सी पैनल है यहाँ, डोमेन यहाँ नहीं है शायद। सर 1 GB रैम इट्स इनफ फॉर वर्डप्रेस, जो उन्होंने लिख रखा है राइट हैंड पे लास्ट वाला। हाँ, राइट हैंड पे लास्ट वाला, 1 मिनट सर। 1 GB रैम इनफ है। 1 GB रैम फॉर वर्डप्रेस, यस, इन्होंने वर्डप्रेस के लिए 1 GB रैम अलग से स्पेसिफाई कर दी है इस वाले पैकेज में। अब इसमें लिखा हुआ है 20,000 विजिटर अ डे, अगर आप FB ऐड चलाते हैं अच्छे वॉल्यूम पे तो ये 20,000 विजिटर इसलिए है। हाँ, ये कहता है कि आपको एक दिन में ही 20,000 लोग आते हैं आपको, तो ये वेबसाइट उनको कैटर करने में कैपेबल है। यहाँ CPU पावर भी दी है, 1 GB रैम भी दी है, तो यहाँ क्या होगा, ये थोड़ी फास्टर होगी बाकी दूसरे ऑप्शंस के बजाय। तो मतलब ये 149 ये वाला लेने, अपना होस्टिंगर का प्लान लेने से ये आई थिंक मच बेटर है। ये वाला प्लान आपका बेटर है, एब्सोल्युटली। ये 149 होस्टिंग राजा वाला बेटर है उससे, क्योंकि यहाँ आपको 20,000 विजिटर्स इन अ डे मिल रहे हैं। हाँ जी, अगर हम उसी में ही 3 ईयर के लिए जाते हैं तो सेम कॉस्ट पड़ रही है हमें, वो सेम कॉस्ट पड़ रही है। और यहाँ आपको वर्डप्रेस थीम वैसे तो 250 वैसे भी मिलती हैं, ये तो इन्होंने लिख रखा है बकवास। और लोडिंग टाइम इसने जो गारंटीड दिया है वो 3 सेकंड्स है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि वेबसाइट आपकी जो लोड होगी वो 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगी। आई थिंक इससे बेस्ट प्लान नहीं है, बस इसके अंदर एक डोमेन नहीं मिलेगा आपको, दैट्स इट। हाँ, डोमेन इसमें नहीं लिखा उन्होंने, नीचे और भी प्लान है, यहाँ फ्री डोमेन है इनका।
अब यहाँ इन्होंने लिखा अनलिमिटेड वेब स्पेस, कितना ही लो आप, एसएसडी कितनी जगह घेरो, कितनी बैंडविड्थ लो, कितनी ईमेल लो, अनलिमिटेड डोमेन एफटीपी लो, सी पैनल वो तो सब है ही, डोमेन भी फ्री देगा ये, रैम 3 GB देगा। ये आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, 5 साल के लिए 287 रुपए में दे रहा है, तो नहीं ये रिकमेंडेड नहीं है, बहुत कॉस्टली जाएगा। ये आप देख सकते हो ये वाला। तीसरा एक गोडैडी पे और चलते हैं। हाँ जी। अच्छा, तीसरी बात एक बीपीएस होस्टिंग बता दूं मैं यहाँ। ये एक होस्टिंग तो थी आपकी शेयर्ड जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक होस्टिंग होती है वर्चुअल स्पेस होस्टिंग। हमें अलग से सर्वर मिल जाएगा, वर्चुअल पावर सर्वर मिल जाएगा जिसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी, तो वो कॉस्टली होती है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा सर्वर अलग ही होना चाहिए जिसे कोई शेयर ना कर सके, अगर मेरा ऐसा काम है कि 24 आवर्स मुझे सर्वर डेडिकेटेड चाहिए, तो बीपीएस होस्टिंग लेनी होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो बिल्कुल डेडिकेटेड चाहिए, जहां कोई किसी का डिस्टरबेंस नहीं, कोई शेयरिंग नहीं हो, सब अनलिमिटेड चाहिए, तो बीपीएस होस्टिंग पे जाओ। बट बीपीएस होस्टिंग बहुत कॉस्टली है, तो इसके 10 गुना 15-20 गुना कॉस्टली मिलेगी। इसलिए पहली बार तो आप शेयर्ड पे जाओ, अगली बार उसे बीपीएस पे कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको लगे कि अब मेरा कम पड़ रहा है या मेरी वेबसाइट डिलीट ओपन हो रही है, ठीक है, तो मेरी बिजनेस पे उसका फर्क आ रहा है, तब आप बीपीएस पे शिफ्ट कर जाओ। तो मैंने अभी किसी ने पूछा था कि मेरे काम के हिसाब से कौन सी होस्टिंग चाहिए, तो अगर आपका काम ऐसा है कि आपको हजारों लाखों लोग एक साथ अभी से वेबसाइट को देखना शुरू करें और सबको इंस्टेंट वेबसाइट ओपन मिले, तो आप बीपीएस होस्टिंग पे जाओ, अदरवाइज आप शेयर्ड होस्टिंग पे रह सकते हैं। सर ये जो अभी 149 वाला प्लान था ना, उसके नीचे लिखा था सी ऑल वर्डप्रेस प्लान्स, मतलब अलग से वर्डप्रेस के लिए प्लान्स है क्या इनके, मतलब पेमेंट देना पड़ेगा? कहाँ सी ऑल वर्डप्रेस प्लान्स? एक मिनट, नहीं, वो नीचे वर्डप्रेस के और भी बहुत सारे प्लान है, उसने ये कहा है वर्डप्रेस का सिल्वर प्लान है 99 बट रुपीज सर पर उसके मंथ। अंदर अगर आप जाते हैं सी वर्डप्रेस प्लान में, यही 149 वाला आपका और चीपर प्राइस पे हो जाता है। यस, वर्डप्रेस गोल्ड 149 3 साल के लिए, इसके अंदर 2 GB रैम दी जा रही है और 50,000 विजिटर डे दी जा रहा है। यह सीपीयू पावर भी है 250, ये है, लोडिंग टाइम है, एसएसएल है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 20 ईमेल है, ये ठीक है। फिर ये ठीक है, और इस पे अगर आप उनकी टीम के साथ बात करो तो और थोड़ा नेगोशिएशन हो जाता है। आप इस पर जब आप यहाँ लॉगिन करके छोड़ दोगे तो आपके पास कॉल आएगी और थोड़ा नेगोशिएशन कुछ न कुछ और आपको ऑफर दे देते हैं वो। सर इसमें 1 क्लिक के ऊपर लाया, ये है अपना 1 क्लिक स्टैगिंग साइट, ये क्या चीज है? किधर है सर? इसी में ही 1 क्लिक स्टैगिंग साइट, जो रेड रंग का है क्रॉस आपके कर्सर से 2 ऊपर। हाँ, ये वाला, ये 1 क्लिक स्टैगिंग साइट का मतलब होगा ये इसमें नहीं है, यानी एक क्लिक मारी और फट से वेबसाइट आ गई, ठीक है, वो इसमें है, यहाँ वो इसमें नहीं होगा। इसमें आपका लोडिंग टाइम 2.5 मिनट है, ये देखो 2.5 सेकंड है, ये इसने लोडिंग टाइम 2 सेकंड गारंटी दी है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक मारा और वेबसाइट उठ के आ गई, वो यहाँ है। क्या इन बिटवीन हम चेंज कर सकते हैं सर होस्टिंग? हाँ, कभी भी, मतलब इन्हीं में ही अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि हम हमारा कस्टमर ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या दूसरी तरफ स्विच कर सकते हैं इन्हीं की वेबसाइट? हाँ, उसको आप जो पैसा डिफरेंस का पैसा है, यानी 6 महीने आपने प्लान चला दिया, 6 महीने आपको दूसरा प्लान लेना है, तो आप स्विच कर सकते हो। स्विचिंग के कुछ पैसे लेते हैं वो, ओके सर, एडिशनल कोई 300 रुपए या 700 रुपए कुछ ऐसा होता है, वो उतना पैसा लेते हैं, डन सर, पर हो जाता है वो। तो ये 2 ऑप्शन हो गए। गोडैडी की तरफ चलते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज ये होगी कि हम होस्टिंग और ये अपनी फाइनल कर दें। होस्टिंग, वेब होस्टिंग, इनके ये प्लान है, एक फ्री डोमेन, ईमेल 199 रुपीज पर मंथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 1 वेबसाइट 100 GB 10 डेटाबेस, अनमीटर्ड बैंडविड्थ,
फ्री वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, यहाँ इन्होंने फ्री वन क्लिक लिखा है, फ्री प्रोफेशनल ईमेल, फ्री डोमेन, यहाँ इन्होंने डोमेन फ्री दिया है और ये दे रहे हैं 199 में। और यहाँ तो होस्टिंग राजा की जो इसमें SSL नहीं दे रहे सर, GoDaddy वाले। GoDaddy वाले SSL नहीं दे रहे, तो GoDaddy महंगा है, बेटर है कि हम होस्टिंग राजा ट्राई करें। यहां देंगे SSL। अब देखो इनकी बदमाशी, SSL के 4,400 रुपए लिखे हैं, दूसरे उसी को 800 रुपए लिख रहे हैं, और जब ओपन खरीदने जाओगे आप तो वो 200-250 रुपए में मिल जाता है। ऐसे करके होस्टिंग राजा आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, वहां से आप होस्टिंग ले सकते हो और दोनों चीजें वहीं से ले लो, डोमेन भी ले लो और होस्टिंग भी ले लो। जब डोमेन और होस्टिंग आपने दोनों ले लिए, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप मैं आपको लेके चलता हूँ कि थर्ड स्टेप यानी उनको कनेक्ट करना। अब क्योंकि मेरे पास तो वो दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको यहाँ से वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहां से एक जगह मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ एक कनेक्ट करना, या क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ। जो तीसरा स्टेप है डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने का, उसका वीडियो मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो या आप कहो तो मैं यहाँ कितना टाइम लगता है कि डोमेन और होस्टिंग लेके एक बारी में ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो जैसे हम होस्टिंग राजा से लेते हैं, अगर दोनों अलग अलग लेते हो तो इट विल टेक 6 आवर्स टू गेट कनेक्टेड बोथ टुगेदर। अगर आप एक ही जगह से लेते हो तो वो आपका इंस्टेंट ऑन हो जाएगा, और इंस्टेंट ऑन होने के बाद आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इन केस वहां कोई इश्यू है तो आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, और वो 24 आवर्स सपोर्ट पे होते हैं, वो आपको सपोर्ट दे देंगे, बस इतना है। अगर एक ही जगह से ले लेंगे तो आपको इंस्टेंट हो जाएगा, अलग अलग से है तो वो 6 घंटे लेते हैं, क्योंकि वो डोमेन को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे कॉन्फ़िगर करने में दे टेक्स टाइम। यहां तक क्लियर है सबको? 3 स्टेप क्लियर हो गए? अगर आपको क्लियर है तो प्लीज यस लिख दें, मैं चौथे स्टेप पर बढ़ूं आगे। वेटिंग फॉर यस। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम चलते हैं आगे। तो यहां मान लिया हमने होस्टिंग और डोमेन दोनों कनेक्ट कर दिए, ये था। तो ये मुझे पैनल मिल गया ओनो होस्टिंग से, जहां पर मुझे एक होस्टिंग थी, मेरा एक प्रोडक्ट था, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं वैसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक पैनल है जहां मेरी होस्टिंग एक्सेस कर रहा हूं, यानी मैं जो सर्वर स्पेस मैंने किराए पर लिया, जो उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो ऐसा एक पैनल मिलेगा मुझे। उस पैनल में यहां मेरे पास देखो स्पेस है कि डिस्क यूजेज कितना है मेरा, ये 2024 MB स्पेस है मेरा, यानी 2 GB स्पेस है इस वेबसाइट के लिए पर्टिकुलर मेरे पास, और 2 GB स्पेस में से 1345 MB मैंने यूज किया हुआ है। तो ये मुझे उन्होंने पैनल दे दिया, मेरा यूजेज स्टैटिस्टिक्स ये आ गया। मेरी बैंडविड्थ कितनी है? अनलिमिटेड है, बट मैंने अभी 90 MB मैंने यूज की हुई है। अनलिमिटेड में से 90 इतना यूजेज में है और इतना स्पेस मेरे यूज में। चलिए अब मैं चलता हूं उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। देन ऑन माय लेफ्ट साइड there is login to cPanel. The same way you would have cPanel with you. कहीं भी आपके पैनल में लिखा होगा cPanel, तो आपको cPanel पर, cPanel मींस कंट्रोल पैनल, तो आपको अब cPanel पर जाना है। और दूसरा ऑप्शन है वेबमेल। अगर कोई ईमेल मुझे मिली है तो वेबमेल पर, वेबमेल को मैं अभी नहीं टच कर रहा, आई एम गोइंग टू cPanel। तो फोर्थ स्टेप, आई एम गोइंग टू cPanel. After clicking on cPanel, the cPanel will look like this everywhere. अगर आपने होस्टिंग राजा से लिया, होस्टिंगर से लिया, GoDaddy से लिया, नेमचीप से लिया, आपने बिग रॉक से लिया, कहीं से भी लिया, your screen will look like this one. ये आपका cPanel है। Now इस cPanel पर you will see the general information, people tr is my account and primary domain I have connected this. Now shared IP is this, home directory is this. So you need not to read everything here. You just go through this. आपको पता चलेगा मेरा 1.9 GB डेटा था, 1.23 यूज किया हुआ है मैंने, सब डोमेन मेरे पास 1 है, ईमेल अकाउंट मेरे पास 1 है,
और यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी एंड यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड व्हाटएवर इज मेंशन्ड हियर प्लीज गो स्ट्रेट डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे चले जाएं एंड यहां जाने के बाद यू विल सी वर्डप्रेस। यहाँ नीचे वर्डप्रेस है, एक ये वर्डप्रेस है, सेकंड यहाँ एक वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टप्लस, बस ये चीजें देखनी है हमें। तो यहाँ मेरे पास डोमेन कनेक्टेड है, जस्ट ए मिनट, ऐड ऑन डोमेन। मैं एक और डोमेन यहाँ बना रहा हूँ अपना, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं आपके लिए टेस्टिंग का डोमेन, आप में से कोई मुझे बताएगा किसका डोमेन बताओ, मुझे अपना नाम बताओ बिजनेस का फटाफट। जस्ट प्लीज ओपन करें माइक या लिख के बता दें। चलिए मैंने चंदन लिख दिया। चंदन लिख दिया मैंने यहाँ। सर इसके अंदर तो 1200 रुपए में सब चीज अनलिमिटेड है फॉर 1 ईयर। हाँ पर इसकी लिमिटेशन है, लाइक ये बहुत स्पीड, मैं आपको वेबसाइट को बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो उसे हैंडल नहीं कर सकती। टेस्टिंग के लिए तो ठीक है, मतलब अप टू अगर 3000 2000 पर मतलब ऑन द स्पॉट विजिटिंग आए तो ये हैंडल नहीं हो पाएगा इनसे। देखिए मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, इसमें इतना टाइम लगेगा। वेबसाइट का 4.5-5 MB की वेबसाइट है और इसे ओपन करने में इट इज टेकिंग मोर देन 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स ले रही है। तो आपकी वेबसाइट को जब भी कोई लिंक को क्लिक करे और 5 सेकेंड वेबसाइट ले जाए तो आदमी का मूड ठीक नहीं रहता, फिर इंस्टेंट खुलनी चाहिए वेबसाइट। मतलब ये ई कॉमर्स के लिए नहीं है ये ओनो ना, ई कॉमर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये तो सिर्फ होस्टिंग राजा इज बेस्ट। हाँ होस्टिंग राजा आप कर सकते हैं, होस्टिंग राजा फिर भी इससे अच्छी है। तो यहां हम पहुंच गए, कहां गए थे, जस्ट ए मिनट। तो यहां एक एड ऑन डोमेन नहीं चाहिए मुझे, सब डोमेन चाहिए था, जस्ट ए मिनट। प्राइमरी डोमेन, ईमेल अकाउंट, तो यहाँ प्राइमरी डोमेन और सब डोमेन ऐसा क्या है वो समझ में? प्राइमरी डोमेन मैम जो मैंने एक डोमेन इसमें लगा रखा है जिसके नाम से इसने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, अब मैं उसी डोमेन पर मैं अपने सब डोमेन बना दूं, यानी एक ही ऑफिस में मैं 4 सब ऑफिस बना दूं तो वो सब डोमेन बन जाएगा। उसके लिए मुझे पैसा नहीं देना होता, बस लेकिन उनका वेबसाइट एड्रेस अलग रहेगा कि सेम रहेगा? मेरी वेबसाइट एड्रेस के आगे ही कुछ नाम लग जाएगा। जैसे मैं सब डोमेन्स यहाँ बना रहा हूँ, ये देखें, तो ये सब डोमेन, जैसे मेरा ये डोमेन है peopletrainersacademy.online, तो अब मैं अगर मेरा एक बिजनेस है, अगर मैं कहूँ से योगा, अगर मैं योगा के लिए पीपल ट्रेनर्स अकेडमी ऑनलाइन को ही यूज करूं तो मैंने क्या किया, यहाँ ये लीजिए, अब एक डोमेन क्रिएट हो गया yoga.peopletrainersacademy.online। अब ये एक सब डोमेन हो गया कि मेरे उसी डोमेन के आगे योगा नेम लग गया है, दैट्स इट। तो ये सब डोमेन हो गया। अब मैं चलता हूं, मैंने एक सब डोमेन बना लिया क्योंकि मुझे डोमेन नहीं खरीदना, मुझे सिर्फ आपको ये चेक करके दिखाना है कि डोमेन पर वर्डप्रेस कैसे चलता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? प्लीज किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है यहां तक? सर few minutes back आप मल्टीपल वेबसाइट्स बनाने के बारे में बोल रहे थे, लाइक आई एम नॉट श्योर, शायद होस्टिंगर का वेबसाइट था वो, जहाँ 5 या 10 वेबसाइट बनाने की ऑप्शन दे रहा था वो। यस 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 यस। तो वो भी ऐसा ही सब डोमेन बना के वेबसाइट्स देता है क्या? नहीं 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 नहीं, नो, दैट्स अ सेपरेट टास्क। एक्चुअली एक तो था कि आपने होस्टिंग ले लिया बड़ा, और होस्टिंग की इतनी, लाइक आपने एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया
और उस प्लॉट में आपको और जिससे भी रेंट पे लिया आपने उसको लैंड को, तो उसने आपको परमिट किया लीगली कि यू कैन स्टार्ट 100 बिजनेसेस ऑन दिस प्रेमिसेस और ऑन दिस लैंड। तो वो तो था होस्टिंग, यानी 100 बिजनेसेस को होस्ट कर सकते हो आपको। अब यहां क्या किया आपने, मान लिया एक बिजनेस के लिए एक सेटअप तैयार कर लिया, मान लिया अब उसी में आपको लगता है कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, बट अगर ट्रेनिंग का काम मेरा थोड़ा लूज है तो मैं चाहता हूं कि योगा भी मैं जानता हूं, अब योगा भी मैं कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरे ही ऑफिस में एक छोटा सा पार्टीशन बना दिया योगा का। तो अब जो पार्टीशन बना योगा का, उसका एड्रेस कैसे दोगे आप दुनिया वाले लोगों को? बोला आप मेरे डिजिटल ट्रेनिंग वाला ऑफिस है उसमें आना, और वही योगा का ऑफिस है उसी में। का मतलब है आपने एक सब ऑफिस क्रिएट कर दिया। एंड फॉर क्रिएटिंग सब ऑफिस यू नीड नॉट टू मेक एन एक्सपेंस, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, एनी एक्स्ट्रा रेंट टू द लैंडलॉर्ड, so you need not to have a separate hosting for that. In that particular hosting, what you did with the same name, same domain, you started one subdomain, and that subdomain is available in your this WordPress setup only. So you need not to buy any hosting for that, you need not to buy any domain for that. बस उसका नाम आपके नाम के आगे लग के वो एक सब डोमेन के नाम से पहचाना जाएगा, लाइक यहाँ yoga.peopletrainers.online लगा। I think it's clear. Yes sir. So जो अभी होस्टिंगर पे आप देख रहे थे जहाँ 5 वेबसाइट्स दे रहा था, तो वहां भी आप 5 सेपरेट डोमेन लेना पड़ेगा ना? वहां नहीं, वहां तो आपकी चॉइस है। इन केस आप वहां 5 वेबसाइट बनाने तो 5 अलग अलग डोमेन ले लो। अगर आप उन 5 वेबसाइट्स पर 5 सब डोमेन और लगाना है तो वो 25 भी हो सकते हैं। होस्टिंगर पर जो 5 डोमेन की बात है, वहां 5 डोमेन परचेज करके डिफरेंट वेबसाइट सेटअप होंगे, इंडिविजुअल वेबसाइट सेटअप। But in this case, when I created subdomain, so within one website, you are creating sub-websites, not pages, sub-websites are there. Means अगर आप individual yoga.peopletrainers.academy.online लिखोगे तो वो एक अलग वेबसाइट की तरह ओपन होगा, इंडिविजुअल हो जाएगा वो, बट है वो उसी का पार्ट। आई थिंक अब क्लियर हुआ? यस सर। अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं तो डोमेन भी 4 साल के लिए ही मिलेगा ना? नहीं, डोमेन 1 साल के लिए मिलेगा सर। मतलब डोमेन हमको हर साल ही रजिस्टर्ड कराना होगा? डोमेन आपको उसका पैसा हर साल भरना पड़ेगा, और पहले साल डोमेन सस्ता मिलता है, अगले साल डोमेन डबल रेट पे जाता है। ओके सर। हम इकट्ठा एक बारी में बुक नहीं करा सकते? इकट्ठा बुक करा सकते हो, डोमेन अगर अलग से परचेज करो तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ले सकते हो। बट अगर होस्टिंग के साथ लेते हो तो ये इनकी मोनोपोली है, और ये 1 साल के लिए ही उसे इंक्लूड करते हैं। ठीक, थैंक यू। ओके ग्रेट, यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? 3 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गए आपके। मैं चौथे स्टेप के लिए मैंने क्या किया, एक डोमेन सरप्लस क्रिएट किया, सब डोमेन, जिससे आपको ये पता चल गया कि सब डोमेन बनाकर भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। अगर आपने एक डोमेन ले लिया है और एक से ज्यादा वेबसाइट्स को आप टेम्परेरीली छोटे यूज के लिए रन कर रहे हो तो कर सकते हो। तो मैंने अब क्या किया, आपके डोमेन पर आपकी होस्टिंग में सबसे पहले वर्डप्रेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट वो आपकी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे। तो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल नाउ द वर्डप्रेस। सो गो इन योर कंट्रोल पैनल डाउनवर्ड, click on WordPress. Now the WordPress is ready to be installed. So you have to click on install now. Everywhere this will come like this only. So you have to click on install now. Now, whenever you click on install now, it will ask you at which one domain you want to install. So now I have 3 domains in my system. peopletrainersacademy.online, and one subdomain is yoga.peopletrainersacademy.online. Third one is crm.peopletrainersacademy.online. Means in this panel, I have created 2 subdomains, but to create a website at every domain or subdomain, you require to install WordPress separately. Now I'm going to chase only the one subdomain which I have created
recently, that is yoga people trainers academy.online, and that is the blank subdomain, and nothing is attached so far with this. So I'm selecting it now. After selecting it, I have to, what is the site name, my blog or anything, whatever name you want to write here, like my yoga blog or my yoga site, my WordPress blog. So you can put admin or some login and password by which it will be accessed, और इसका कोई ईमेल होगा वो आप लिख सकते हो. सिंपली ये करने के बाद and then install, straight go to the install. Now it will take little time, 3-4 minutes. What is happening? The fresh copy of WordPress is being installed on this your domain. Now it got installed. अब आपके एक स्टेप और पूरा हो गया, तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया. यहां तक सबको क्लियर है? वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया. वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अब एक्चुअली अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप क्या था? थीम्स इंस्टॉल करना था. थीम इंस्टॉल करना था. अब मुझे क्या करना है, यहां गया मेरे कंट्रोल पैनल पर. अब मेरे पास देखिए यहाँ 2 वेबसाइट बता रहा है वो. एक तो पीपल ट्रेंड्स अकेडमी ऑलरेडी है, एक दूसरी वेबसाइट जो सब डोमेन पे लगा दिया मैंने. अब मैं इसको लॉगिन करूंगा. सिंपली मैंने इसको लॉगिन किया. लॉगिन करने के बाद अब मेरे पास ये डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा, बिल्कुल ब्लैंक. आपको कहीं भी वेबसाइट जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिकॉज आप अभी, आपको ऑफिस और बिल्डिंग तो दिखाई नहीं देगी, अभी तो आप फाउंडेशन कर रहे हो, यानी आपने फाउंडेशन ले किया है अभी. तो फाउंडेशन जब तक ले किया तब तक अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने अभी रूम कास्ट नहीं किए, कुछ नहीं किया. अब यहाँ जाने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को डिजाइन करो. तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन योर अपीयरेंस. इन अपीयरेंस देयर इज द फर्स्ट ऑप्शन थीम्स. देन आई वेंट टू द थीम्स. In WordPress environment, in WordPress system, there are a lot of free themes available. बहुत सारी themes available हैं. यहाँ आप क्या करेंगे, सर्च, यहाँ कोई थीम आप ऐड न्यू करें. ऐड न्यू पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. देखिए इतनी सारी थीम्स फ्री में है. और अब इनमें से मैं एक थीम ले लेता हूं, एक मल्टीपर्पज थीम, एस्ट्रा. एस्ट्रा एक मल्टीपर्पज थीम है. अदरवाइज आप देखेंगे एलएमएस की थीम है, टूरिज्म की थीम है, जिस काम से रिलेटेड आपको थीम चाहिए वो सब फ्री में अवेलेबल है यहाँ. ठीक है, करीब 2000 थीम अवेलेबल है वर्डप्रेस में, जिनमें से आपके काम की थीम जरूर मिल जाएगी. आप कोई भी थीम यहाँ से सेलेक्ट करके फ्री में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो यहां मैं एक थीम ले लेता हूं जो जनरल पर्पस थीम यूज होती है, एस्ट्रा, दैट इज अवेलेबल, दिस वन इज. तो यहाँ एस्ट्रा को आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो उसका, कि उसमें कितने पेजेस हैं. ये मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया. तो थीम क्या करेगी, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, उसके आउटलाइंस. अब इसे इंस्टॉल होने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल करना है. तो एक टेम्पलेट उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी, टेम्पलेट इंस्टॉल करनी पड़ेगी. तो पहले हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं, इट विल टेक टाइम. देन फिर हम टेम्पलेट पर जाएंगे, और आज हम उतना ही करेंगे बस, क्योंकि आज इतने तक आप पहुंच जाओगे तो फिर कस्टमाइज करना, टेम्पलेट में कंटेंट भरना, ये सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे हमारे लिए. थीम इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा. अब इंस्टॉल हो गई है और मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूं. ये लीजिए थीम आपकी एस्ट्रा यहां से इंस्टॉल हो गई है. आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं. यहां से गेट स्टार्टेड किया मैंने. अच्छा, अब यहां देखेंगे आपको ये पूछेगा पेज बिल्डर. अच्छा, आपके पास
वो पूछेगा पेज बनाने के लिए आपको कोई हेल्पर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो वो 4 असिस्टेंट 4 हेल्पर बता रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है एलिमेंटर ही लेना है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इजीएस्ट पेज बिल्डिंग एप्लीकेशन जो आपको हेल्प करेगा। अब उसे लेने के बाद अब यहाँ आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए, ये देखो, यानी जो इंटरनल जो कंटेंट फीडिंग होगी वो इनमें से कोई भी एक कंटेंट ले सकते हो आप। बहुत सारी टेम्पलेट्स इसने दे दी है। तो अगर मैं योगा का ही लेना चाहता हूं तो ब्रांड स्टोर, यहां से मैं क्या करूंगा, फ्री वाले ले लूंगा। ऑल, मैं फ्री वाले लेता हूं, यहाँ पेड भी है और फ्री भी है। तो मैंने यहां से फ्री वाला लिया, ऑल फ्री, और यहां से फ्री में देखना ये रहा योगा वाला ऑप्शन, मैंने यहां से ले लिया क्योंकि मुझे योगा की चाहिए थी। तो मुझे योगा का पूरा थीम मिल गया। होम पेज ऐसा होगा, कोर्सेज के पेज ऐसा होगा, अबाउट अस का ऐसा होगा, कॉन्टेक्ट का ऐसा होगा। अगर ये ठीक लगता है तो ठीक, इंपोर्ट कर लो, नहीं ठीक लगता तो इसे दूसरा सर्च कर लो। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको 2 प्लगइन चाहिए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने इनको, ये पूछेगा खुद के लिए बना रहे हो क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो मैंने खुद के लिए लिख दिया और अपना नाम और ईमेल आईडी दोनों मैंने लिख दिए। और अब ये मेरे वर्डप्रेस में जो उसने थीम इंस्टॉल की थी उस थीम में इसने एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर दी, और थीम और टेम्पलेट दोनों एक साथ मिलकर अब मुझे वेबसाइट की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये इंस्टॉल कर रहा है, प्लगइन भी ला रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्या अब यहां आकर? कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं, यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेट लग रहा है किसी को? प्लीज अगर किसी को क्या अभी आप कर रहे हैं ना, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कॉम्प्लिकेट और उस चीज में हमें पता ही नहीं चल रहा। एग्जैक्टली तो अब आज आपको प्लीज घर जाकर सबको करना है। और तो ये वेबसाइट इज बीइंग इंपोर्टेड बोल रहे हैं, मतलब क्या? इंपोर्टेड का मीन्स अभी जब मैंने इसको टेम्पलेट के लिए अलाउ किया है ना, तो टेम्पलेट का मतलब है कि आपके फाउंडेशन पे जैसे 5 कमरे की बनी हुई थीम लाके ये उस पर अप्लाई कर रहा है। और फिर इसने कहा है कि जब आप ये टेम्पलेट ले रहे हो तो इसमें 2 आपको प्लगइन भी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कैसे इंस्टॉल करोगे और सैनिटरी सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करोगे, 2 प्लगइन भी चाहिए। तो मैंने कहा वो भी ले आओ, और वो फ्री में मिल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ले आएगा। तो इसने क्या किया, वो सारा सामान जो वेबसाइट को, एक योगा की वेबसाइट के लिए जो बेसिक चाहिए होता है, एवरीथिंग, इमेज सब लगा के देगा आपको। आपको सिर्फ अपना लोगो रिप्लेस करना है, अपना कंटेंट रिप्लेस करना है, अपनी इमेजेस रिप्लेस करनी है, बस, बाकी सब वो करके देगा। इसने कहा कि मैंने सब ला दिया आपके लिए सक्सेसफुली, नाउ यू कैन व्यू योर वेबसाइट, एंड एज आई क्लिक्ड ऑन इट, नाउ योर वेबसाइट विल कम इन द एक्चुअल फॉर्मेट। ये देखिए, अब ये आपकी वेबसाइट बन गई है, ये आपके पास सब हो गया, एवरीथिंग इज देयर। यहां अब सिर्फ आपको क्या करना है, सारा कंटेंट रिप्लेस करना है, अदरवाइज द स्ट्रक्चर इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। तो फ्री सेक्शन में कंटेंट कॉपीराइट नहीं होता है? नहीं, ये कॉपीराइट वाला है ही नहीं सर। ये तो जो ओपन सोर्स है ना, सारा फ्री में जो पड़ा है, जो फ्री में पड़ा है, यहाँ बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो फ्री में पड़े हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसमें लिखा है कॉपीराइटेड 2020 माय योगा साइट। अभी आप जब इसको चेंज करने वाले हो तो ये इमेजेस भी आपकी निकल जाएंगी सारी, लोगो भी यहाँ से निकल जाएगा सारा, और यहाँ से आपका जो कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा जो आपका लगता हो कि कॉपीराइट वाला है। ये सारा कंटेंट भी चेंज हो रहा है, इमेज भी चेंज कर रहे हो आप, लोगो भी चेंज कर रहे हो आप, तो कुछ भी तो नहीं बचता जिसपे वो कॉपीराइट करेगा। और ये सारा पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। ये 2000-2500 के करीब थीम्स हैं जो वर्डप्रेस पे हमेशा ओपन पड़ी होती हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में। यहाँ ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड में जाके ये सारा कंटेंट चेंज करना रह गया बस,
और आपकी वेबसाइट रेडी। अब इस वेबसाइट में जितने भी आपको टूल फीचर्स लगाने हैं आप लगाते चलेंगे, बट बेसिक वेबसाइट आज एक दिन में आपकी तैयार होगी। आपको सिर्फ होस्टिंग और डोमेन लेना है और ये स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ तक वाले। तो किसी को यहाँ तक आने में कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ, नहीं तो आप आज डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लें और इसको ट्राई करें। कल मैं आपके लिए अवेलेबल बैठा हूं सुबह, परसों मैं अवेलेबल बैठा हूं सुबह। प्लीज आप मुझे कॉल करके मैं इंडिविजुअल आपकी वेबसाइट्स को इंस्टॉल कराता चलूंगा 1-on-1, क्योंकि कोई होस्टिंग राजा में करेगा, कोई गोडेडी में करेगा, तो सबके अलग अलग सेटअप है थोड़े थोड़े, आपको वहां थोड़ा इश्यू आएगा, वो आपको 1-on-1 हम कराते चलेंगे। आई थिंक क्लैरिटी है यहां तक। चलिए ग्रेट। तो आज आप सब होस्टिंग और डोमेन प्लीज ले लें, जिन लोगों ने नहीं लिया है वो होस्टिंग और डोमेन होस्टिंग राजा से ले लें, या आप होस्टिंगर से ले लें, या गोडेडी से, जहां से आपको बेटर लगता हो। होस्टिंग राजा चीपर है तो बेटर आप उस पर चले जाएं, और कम से कम साल या 2 साल का तो आप ले ही लें, बाकी जितना लंबा लेते हो बेटर है आपके लिए। एक ही जगह से डोमेन होस्टिंग दोनों परचेज कर लो तो कनेक्शन आप आपस में कनेक्ट करने का भी आपका लफड़ा खत्म। यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स के लिए होस्टिंग राजा या फिर अपना होस्टिंगर से परचेज किया जाए, दैट इज मच बेटर। ई कॉमर्स के लिए आपको हाई बैंडविड्थ वेबसाइट चाहिए आपको, बस ये है। मैं तो ये कहना चाहूंगा ले किसी से लो। पर लेकिन मेरा ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ मेरी सिटी के लिए है, सराउंडिंग 50 किलोमीटर के लिए बस। नहीं, आपकी 50 किलोमीटर कहीं भी हो, पर आपने जो सर्वर लिया आपको नहीं पता वो सर्वर यूएस में है इंडिया में। नहीं, वो पिन कोड वाइज चलाएंगे ना अपना, तो जो पिन कोड डालेगा उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट दिखाएगा। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, पर विजिटर कितने आएंगे बस ये देखना है। आपके विजिटर, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, 10,000 विजिटर एट ए टाइम अगर रहेंगे, 5,000 विजिटर एट ए टाइम रहेंगे, तो भी आपकी वेबसाइट ये जो होस्टिंग दे रहे हैं अनलिमिटेड वाली, तो भी काफी है अभी। और फिर आप शुरू करो सर, शुरू में अभी बहुत ज्यादा पैसे मत खर्च करो। मैं ये कहता हूँ 1 साल के लिए या मैक्सिमम 2 साल के लिए ले लो उस होस्टिंग को। अभी जब आपको लगता हो कि मेरी वेबसाइट अब ऐसा लग रहा है कि वो हैंग हो रही है और मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, डिफरेंस पे करके आप अगला प्लान ले लेना। अभी से उसका बड़ा पैसा देने की, क्योंकि आपको भी महीनों लगेंगे वेबसाइट को शेप करके मार्केटिंग में लाने के लिए। सर अभी अगर हमने 1 या 2 साल के लिए लिया तो बाद में वही डोमेन नेम मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। आपका डोमेन नेम आपकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का मतलब है कि डोमेन नेम भले ही आपने किसी से भी लिया, बट जैसे हम अपना मोबाइल नंबर MNP कर सकते हैं, वैसे डोमेन को किसी पर भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने गोडेडी से डोमेन लिया था तो मैं उसी के साथ बाउंड हूं। आप जब चाहें तब रिक्वेस्ट देख के आप अपने डोमेन को फ्री करा सकते हैं, और किसी भी ऑपरेटर के साथ उस डोमेन को यूज किया जा सकता है। मतलब होस्टिंगर से अच्छा प्लेटफॉर्म होस्टिंग राजा दे रहा है, आई थिंक सो। हाँ, वो चीपर दे रहा है, चीपर, और उसके फीचर्स अच्छे दे रहा है। फीचर्स अच्छे, 50,000 विजिटर पर डे एक्सेप्टेबल है। आज अगर तीनों को कंपेयर करें तो होस्टिंग राजा बेस्ट है, उसका जो प्लान जो अभी हमने देखा। यस, आज हमारा वो प्लान बेस्ट है। तो जिन लोगों ने बिग्स पर वेबसाइट बनाई, डैनी जी ने बनाई है और शेखर जी ने बनाई है, अब वो कंपेयर करें कि कहां वो कंफर्टेबल है। अगर बहुत एडवांस वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस पे जाएं, और बहुत ईज में बनानी है तो, और आपका काम चलता है तो आप बिग्स पर बने रहें। पर बिग्स पर हमने अगर वेबसाइट बनाई तो वही नाम हमें वर्डप्रेस के लिए भी मिल सकता है कि अलग नाम से लेना पड़ेगा? नहीं, देखो नाम चलेगा तो एक ही जगह। आपने बिग्स पे वेबसाइट बना दी, उसी नाम से आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि नाम एक ही वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकता है। एक नाम पर 2 वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती। एक वेबसाइट के साथ 2 नाम कनेक्ट हो सकते हैं। यानी वेबसाइट एक ही है, आप उसके 5 नाम रख दो तो वेबसाइट 5 नाम से एक वेबसाइट पर 5 डोमेन कनेक्ट किए जा सकते हैं, बट एक डोमेन पर 2 वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती। अगर बिग्स पर आपने अपने नाम से peopletrainers.in से बना दिया तो peopletrainers.in से वर्डप्रेस पे नहीं बना सकते।
वो एक ही जगह थ्रेड होके कनेक्ट होता है, उसका टेक्निकली एक ही जगह लगेगा। ओके सर। अगर आपको दो जगह वेबसाइट, मेरा तो आपको सबमिशन है कि दो जगह नहीं बनानी, बहुत मेहनत लगती है वेबसाइट बनाने में, इसलिए अभी मन बनाओ एक ही जगह रखो उसे। और जो विक्स पर आपने 2-3 दिन मेहनत कर ली है, वो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। वो आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया है, उसमें आपने हाथ आजमा लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे डैनी जी ने बहुत मेहनत की है उसमें, शेखर जी ने भी कुछ मेहनत की है उसमें, जिन्होंने की है वो सीख गए वेबसाइट में डीप डाइव करना। विक्स पर हमें होस्टिंग अलग सा लेना नहीं पड़ता है ना? नो, विक्स पर कुछ भी नहीं लेना पड़ता, यू जस्ट हैव टू पे देम द पैकेज फी एंड एवरीथिंग इज देयर। तो क्या वर्डप्रेस की तरह हम इसके अंदर सारा एसईओ कर सकते हैं सब विक्स के अंदर? एब्सोल्युटली, एसईओ दोनों जगह कर सकते हो, दोनों जगह एसईओ अलग तरीका है। वहां एसईओ करने के लिए आप, उसने एक सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है, आप वैसे एसईओ कर सकते हो। और वर्डप्रेस का एसईओ जो है बहुत अच्छी तरह होता है, वर्डप्रेस का बहुत एडवांस एसईओ हो जाता है। ब्लॉगिंग अच्छी होती है वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी होती है, टैगिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती हैं, मल्टी डायमेंशनल वेबसाइट बनती हैं, फीचर्स बहुत डेप्थ में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें लगाई जा सकती हैं। आप जितना डीप डाइव करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी बेहतर होती जाएगी आपकी वेबसाइट। सो विक्स पे भी हम ई कॉमर्स स्टोर वगैरह चला सकते हैं ना? एब्सोल्युटली चला सकते हैं। और विक्स पर आजकल एडिटर एक्स आ गया है, वो बहुत जबरदस्त फीचर है, थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत जबरदस्त फीचर है। ई कॉमर्स एडिटर एक्स, जब आप विक्स पर वेबसाइट बनाने जाते हो तो वो दो ऑप्शन पूछता है, विक्स और एडिटर एक्स। तो राइट साइड में एडिटर एक्स होता है, लेफ्ट साइड में विक्स होता है। दोनों में से एडिटर एक्स एडवांस फीचर है उनका, जहाँ बहुत अच्छी ई कॉमर्स लेवल की वेबसाइट्स बनती हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव उनकी थीम्स होती हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी टक्कर के हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत इजी से काम करना है, तो विक्स पे जाएं। और आपको लगता हो मेहनत करके बहुत एडवांस वेबसाइट बनाने वाले, तो आप वर्डप्रेस पे चलें। नाउ द डिसीजन इज अप टू यू। जिनको वर्डप्रेस पे चलना है, प्लीज आज अपनी होस्टिंग और डोमेन ले लेना। कल और परसों हम उन्हें कनेक्ट करा देंगे इंडिविजुअली आपके साथ, और फिर परसों से आप अपनी वेबसाइट को थीम इंस्टॉल करके आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अगली 2 क्लासेस में हम हैंड होल्डिंग करते जाएंगे, 1-on-1 एक-एक का नंबर ले लेंगे दिन में, और आपकी वेबसाइट रेडी होती जाएगी। तो ये जो खर्चा करना है, प्लीज बिना हेजिटेशन के कर डालो, और ये आपको वैल्यू ही देगा, 100% वैल्यू देगा। आप खुद बनाएं तो, या किसी से बनवाएं तो, आपके डोमेन होस्टिंग तो चाहिए ही होगा, कोई और खरीदे बजाय उसके आप खुद खरीदो। आपके पास लॉगिन पासवर्ड हमेशा होने चाहिए। प्लीज लॉगिन पासवर्ड अपनी वेबसाइट के किसी भी डेवलपर को आप टेम्परेरी वैल्यू दे दो, पर कंट्रोल अपने पास रखना। प्रॉब्लम होती है, आप पैसे भी दे देते हो और कंट्रोल उनके पास रहता है, हर साल वो आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, छोटी छोटी चीजों के बहुत बहुत पैसे मांगते हैं। तो इसलिए आप अपनी वेबसाइट का कंट्रोल अपने पास रखो। वो आपका ऑफिस है, उसमें काम कराने के लिए आप किसी को भले ही दे दो, बट उसके लॉगिन पासवर्ड्स हमेशा कंट्रोल आपका रहे, ठीक है। जैसे कल परसों आप हमें, अभी जब हम आपका करेंगे तो आप हमें अपने लॉगिन पासवर्ड बताओगे, पर वो टेम्परेरी है। जब हमारा काम उसमें हो जाए, आप अपने लॉगिन चेंज करें और अपने पास कंट्रोल रखें। आई थिंक क्लियर है। बहुत शांति है कमरे में आज। क्लियर है? शेखर जी, डैनी जी, लक्ष्मी मैम, अलका मैम, कुलदीप जी, इज दैट ओके? क्लियर सर। वेरी गुड। तो हम अब जिनको भी डोमेन होस्टिंग में लेने में भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज आप फोन पे बात कर सकते हैं, 1-on-1 कर सकते हैं हम। और अभी फिलहाल सर किसमें अच्छी ऑफर चल रही है? होस्टिंग राजा का 149 वाला ठीक है, और वो आप ले सकते हैं, बेटर है। क्योंकि हम लोग एकदम अभी नए नए शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए कौन सी बेटर है सर? मैम देखो, आप नए तो कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा तीनों में से वो बेटर है। और अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा स्पेस यूज नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला पैकेज मत लो, कम पैसे वाला पैकेज भी आप चला सकते हो। एलिमेंट्री लेवल पे आप जाओ, जिसमें डोमेन और वो आपका दोनों हो, होस्टिंग, ऐसा पैकेज एक बेसिक ले लो, जो 100 रुपीज 150 रुपीज पर मंथ के अप्रोक्स हो, इतना कॉस्ट आपको लगेगी।
आराम से आपका काम चले। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी। मेरे को लैंडिंग पेज बनाना है, हाँ वेबसाइट भी बनाना है और एक प्रोजेक्ट पर इसमें को लैंडिंग पेज भी बनाना है, जी। तो ये कौन सा सूटेबल रहेगा सर? वेबसाइट बनाने के साथ ही देखो, एक तो वेबसाइट बनती है कि उसका डोमेन ही अलग हो जाता है लैंडिंग पेज का। अच्छा, उसका डोमेन ही अलग हो जाएगा लैंडिंग पेज का, और उसी से लैंडिंग पेज बनते जाएंगे वो। तो वो एक लैंडिंग पेज सिस्टम ही अलग बनता है, उसे सेल्स फनल बोलते हैं हम। तो या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट में ही सेल्स फनल का प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा और अपनी वेबसाइट पर ही आप दोनों काम कर सकते हो, यानी सेल्स फनल भी वहां हो जाएगी और आपकी वेबसाइट भी वहां हो जाएगी। तो आपके पास दोनों चॉइस होंगी। यानी सर थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। नहीं आया, मैं समझाता हूँ सर, मैं समझाता हूँ सर आपको। आप अपनी एक ही वेबसाइट में ना सर लैंडिंग पेज वहीं लगा सकते हो। जैसे मैं जा रहा हूं अभी, ये एक साथ सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी माइंड में। जैसे मैं अपनी वेबसाइट में लेके चल रहा हूं, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ आपके क्वेश्चन से। सर दूसरा ये पूछना था जी। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट का लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है। 1-2 महीना रन किया, फिर मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट के लिए वापस बनाना है, तो वही लैंडिंग पेज में मैं एडिट कर सकता हूँ सब इमेजेस की नया देना पड़ेगा? सर उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक साथ 100 लैंडिंग पेज बनाओ। जैसे मैं आपको, मेरी ये वेबसाइट है ये वाली, ये देखो। अब इसमें आपको कहीं भी लैंडिंग पेज नहीं दिखाई देगा, ये वेबसाइट है। पर इसी वेबसाइट में वर्डप्रेस में बैकएंड में ये लैंडिंग पेज बना हुआ है मेरे पास। अब यहाँ आप देखेंगे लैंडिंग पेज कितने बनाए हुए हैं मैंने। ये माय गॉड 4 लैंडिंग पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं इसमें 400 बनाऊं तो भी चलेगा। लैंडिंग पेज पूरा फनल सिस्टम इसमें बन के तैयार होता है। इसको जैसे ये मेरा ट्रेन द ट्रेनर है, ट्रेन द HR है, और ये लैंडिंग पेज आप देखो, सिर्फ मेरी वेबसाइट के आगे ऑब्लिक HR ट्रेनिंग लग गया और ये पूरा का पूरा लैंडिंग पेज है। ये देखो, ये कंप्लीट लैंडिंग पेज है। ये आप देखेंगे पूरी सेल्स फनल बनी हुई है। सिर्फ वहां जाके वेबसाइट के आगे लिंक, आपको ना डोमेन लेने की जरूरत पड़ी और ना ही आपको कोई होस्टिंग लेने की जरूरत पड़ी उसकी। एवरीथिंग इज देयर, बस एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है और ये बन गया। वहीं ये देखिए दूसरा वेब डेवलपमेंट का ये वाला एक लैंडिंग पेज है। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग लैंडिंग पेज है, अलग टॉपिक का। इसको पैरेलल कभी भी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद अब क्लियर हो गया आपको सर? हाँ, तो आप एक ही वेबसाइट में मल्टीपल लैंडिंग पेज बना सकते हो। उसके लिए अलग वेबसाइट बनाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, वो उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, GoDaddy की तरफ सोचना भी नहीं है। जो आपने एक बार ले लिया वही काफी है, उसी में हो जाएगा ये सब काम। ना डोमेन खरीदना, ना होस्टिंग खरीदनी। आपको अपने वर्डप्रेस में आप ही की वेबसाइट में लैंडिंग पेज फैसिलिटी ऑलरेडी वहां इनबिल्ट है। आप लैंडिंग पेज बनाओ, एक नहीं 100 बनाओ और उनको 100 को रन करो। उसका आपकी वेबसाइट के आगे सिर्फ एक नाम चेंज हो जाएगा और वो वही लैंडिंग पेज चलते जाएंगे। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो सर अभी ये लैंडिंग पेज का प्रमोशन कैसे होगा? वेबसाइट के साथ में क्या अलग से मैं कर सकता हूँ? सर ये जो वेबसाइट का, जैसे अब ये वेबसाइट वाला लैंडिंग पेज है, इसका लिंक उठाया मैंने और इसके लिंक को उठा के मैंने सब जगह मार्केटिंग करनी शुरू की। अच्छा, तो अब इस लिंक को लोग जो भी क्लिक करेगा वो सीधे मेरे लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा आगे।
तो मेरी वेबसाइट अगर किसी को चेक करनी है तो ये यहाँ से वेबसाइट हटा के अगर कोई मेरी वेबसाइट देखना चाहता है तो वेबसाइट भी देख सकता है, अदरवाइज लिंक से वो सीधे लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। ये लीजिए, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। अच्छा, इसमें से समझो मेरा लैंडिंग पेज है, फिर मैं उसको गूगल के थ्रू डायरेक्ट एसओडब्ल्यू में प्रमोट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली कर सकते हो सर। लिंक ही अलग हो गया ना उसका, बिल्कुल अलग हो गया लिंक। कभी आप एक बार करोगे ना अपने हाथ से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लैंडिंग पेज की अलग वेबसाइट बनाओगे, अलग पैसा खर्च करके, अलग डोमेन होस्टिंग करके, तब भी तो एक लिंक ही बनेगा ना सर। वो लिंक आपने अपने जो सेटअप रेडी है आपका उसमें से क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए, और किसी का क्वेश्चन था? लक्ष्मी मैम का ही क्वेश्चन था कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज इज वन पेज वेबसाइट में, लाइक आई हैव दिस वन, just to promote your one item, one product, one service only. So this will display the information regarding one campaign, one offer, one product, one service, whatever is going on, वो एक ही चीज के बारे में बात करेगा और उसमें आपको ऑफर देगा, लोग वहां रजिस्टर करेंगे और सीधे वेबसाइट पर उसका डेटा रजिस्टर होगा और आपकी वेबसाइट उसके साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन कर रही होगी। So that is called sales funnel system. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आज बहुत लंबा क्लास हो गया, फिनिश करें। ओके, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, प्लीज आज की रिकॉर्डिंग को एक बार देखना। देखने के बाद फिर उसे कल सुबह मेरे से आप जितनी सपोर्ट चाहिए लें, और ये थोड़ा पैसा जो डोमेन होस्टिंग पे खर्च करना है कर दो खर्च, सोचना नहीं है, ये आपकी बिजनेस में बहुत वैल्यू देगा, बहुत वैल्यू देगा। आपको जहां जिस पोर्टल से खरीदना है खरीदो एंड आपका फायदा हो, आप आगे बढ़े। अगर आप ले लोगे डोमेन होस्टिंग तो ये क्लासें खत्म होते होते ही आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसी के साथ इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।